کراچی سے سٹی منصوبہ مکمل کریں، عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن، مفرور ملزمان کی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ صوبائی جسٹس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سندھ میں عوام کو سستے انصاف اور تحفظ کے لیے بڑی بیٹھک۔ کراچی میں لوٹ مار اور کچے میں ڈاکو راج پر تشویش کا اظہار۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں ہونے والے صوبائی چیف جسٹس کمیٹی کا اجلاس میں اہم احکامات جاری کر دیے گئے۔ اجلاس کے نکات اور فیصلوں کی دستاویز کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے افزورش دی کہ کہا جاتا ہے منظم جرائم میں بااثر سیاسی شخصیات، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور علاقے پولیس کی سرپرستی حاصل ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اغوا کار مغویوں پر تشدد کی ویڈیوز بھی سماجی ویب سائٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ڈکیتوں اور قاتلوں کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا صوبے بھر میں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کو فرضی کارروائیوں کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مفرور ملزمان کا ڈیٹا نادرا سے لنک کر کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس پکٹس میں اضافہ اور نیشنل ہائی ویز سے اسپیڈ بریکرز ختم کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی اے موبائل فون سمز جاری کرنے کے طریقہ کار کو بغور جائزہ لے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایس پیز اور علاقہ ایس ایچ او کسی بھی واقعے کے ذمہ دار ہوں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان فقدان کو ختم کیا جائے۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے سیف سٹی منصوبہ بھی جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون، صوبے بھر کے ڈی آئی جیز و دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز نے اجلاس کو کراچی سمیت صوبے بھر میں رینجرز کی تعیناتی اور امن و امان کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ملیر ایکسپریس وے کا ایک حصہ اگست میں کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے تمام اضلاع کے منتخب نمائندوں کا اجلاس ہوا۔ بولی اسٹریٹ کرائم اور ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی جاری ہے اور جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے کا ایک حصہ اگست میں کھولنے کا اعلان، یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد کو پرامن اور فضائے سبز میں تبدیل کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے تمام اضلاع کے منتخب نمائندوں کا اجلاس میں ایم این ایز، سینیٹرز، ایم پی ایز، میئر کراچی ٹاؤن و یوسیز کے نمائندگان اور پارٹی ورکرز شریک ہوئے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ ملیر ایکسپریس وے ابھی زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اس کا ایک حصہ اگست میں کھولیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ کراچی میں امن قائم کیا، کاروباری سرگرمیاں بہتر کی، اسٹریٹ کرائم اور ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی جاری ہے اور جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بلدیاتی نمائندوں بالخصوص ٹاؤنز کو ہدایت کی ہے کہ عوام کے مسائل حل کریں۔ تمام ٹاؤن سے اچھی خبریں آنی چاہیے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر ناصر شاہ نے منتخب نمائندوں و کارکنوں کو تجویز دینے سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو، جنرل سیکرٹری وقار مہدی، صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، سردار شاہ، سعید غنی، شاہینہ شیر علی اور دیگر شریک ہوئے۔ ایم این ایز میں قادر پٹیل، نبیل گبول، حکیم بلوچ، سینیٹرز ندیم بھٹو و مسرور احسن اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یوسیز کے فنڈز بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ سی ایم میں اجلاس ہوا جس میں عوامی نمائندوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ اکثر یو سی چیئرمینوں کی دفتر نہ ملنے کی شکایت۔ پیپلز پارٹی ملیر کی خاتون رہنما سعدیہ مجید نے کہا کہ شہر کا گندا پانی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے، آبی حیات تباہ ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ورکرز اجلاس کی اندرونی کہانی۔ لیاقت آسکانی کا پیپلز بس سروس میں ضلع کماڑی اور غربی کو نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ کارکنوں نے شکایت کی ملیر سے تمام نشستیں جیتی ہیں، کابینہ میں نمائندگی کم ہے۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کی چاندی، چوتھے روز بھی پرچہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ کئی امتحانی مراکز پر پیسے دو نقل کرو کا نظام نئی نسل کو تباہ کرنے لگا ہے۔ آئمہ خان رپورٹ کریں گی۔ بدنظمی، نااہلی یا نئی نسل کو تباہ کرنے والوں کی سرپرستی، پرچے آؤٹ ہونے سے رک سکے اور نہ ہی نقل مافیا کے خلاف ہوا کوئی ایکشن۔ شہر قائد میں میٹرک کے امتحانات میں بدنظمی جاری۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کے دعووں کے باوجود نقل مافیا بے خوف، سیل فون ضبط کرنے کے دعوے بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ شہر کے کئی امتحانی مراکز کی طرح پیسے دو نقل کرو والا نظام چل رہا ہے۔ پروگریس ماڈل ہائی
स्कूल में गुंजाइश से ज़ायद तलबा बिठाए जा रहे हैं और पैसे दो और नकल कराने का रिवाज आम है। वो जो अंकल बैठते हैं ना, वो गेट पे, उन्होंने 7-7 10 हज़ार रुपये लिए हैं एक बच्ची से, उनसे पेपर क्लियर कराने के। वो भी एक अलग रूम में बिठा देते हैं और कोई चीटिंग नहीं, बच्चे खुद अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। पैसे इतने मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये दो पैसे उसका बोल रहे हैं। हालांकि हमारे बच्चे ने तो नकल करनी ही नहीं है, लेकिन औरों की वजह से उनसे ही पैसे मांगे यार। यहाँ पर पैसे देके चेकिंग करवाई जा रही है और जो मेहनत से कर रहे हैं उनको भी मतलब पैसे लेके करवाया जा रहा है। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के परवेज हारून का कहना है कि नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाज़ माफियाज के स्कूल्स हैं वो जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल हैं और कुछ निजी तालीमी इदारे भी शामिल हैं। वो जो माफियाज के स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स के जो समझ लें नुमाइंदे हैं या जो पियून्स वगैरह पेपर लेने जा रहे होते हैं या जो भी वहाँ से पेपर लेकर, वहाँ से आधा घंटा पेपर लीक हो रहा है। मगर ये बहुत ही कम लोग हैं जो पेपर्स और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ये विद इन फ्यू मिनट्स पेपर्स लीक कर देते हैं। मैट्रिक बोर्ड की विजिलेंस टीम का कहना है कि बच्चे ज्यादा हैं, जगह की कमी है, जिसके बायस एक डेस्क पर 2 बच्चे बैठकर पर्चे कर रहे हैं। एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठे हुए, हमने उनसे ये कहा कि भाई एक डेस्क पे 2 बच्चे क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड ने हमें फर्नीचर नहीं दिया, आप जो है बोर्ड से शिकायत करें, वो हमें फर्नीचर दे देंगे तो हम अलग अलग बच्चा बिठा देंगे। वालिदैन ने आला हुकाम से इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा किया और कहा कि छोटे स्कूलों में इम्तिहानी मराकज़ बनाकर बच्चों का दोहरा इम्तिहान लिया जा रहा है। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया इम्तिहानी मराकज़ बेहतर तौर पर तरतीब देने में नाकाम हुई है। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। मैट्रिक इम्तिहान मजाक बन गए। चौथे रोज़ भी पर्चा व्हाट्सएप पर लीक कर दिया गया। बोर्ड में भी नकल माफिया के आगे बेबस दिखाई दिया। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान 200 तालिबात का इम्तिहानी मराकज़ तब्दील कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की तालिबात को मलीर के इम्तिहानी मरकज़ जाना पड़ा। कुर्सी ना मिलने पर तालिबात रो पड़ी। आयमा खान की रिपोर्ट। तालीमी बोर्ड का तलबा के साथ खिलवाड़। इम्तिहान शुरू होने के बाद तक 200 तलबात के इम्तिहानी मराकज़ का तयन ना हो सका। 200 तलबात को अचानक मलीर के इम्तिहानी मरकज़ में भेज दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अचानक 200 तलबात पहुंचने पर जगह कम पड़ गई। कुर्सी ना मिलने पर तलबात रो पड़ी। 23 में आपके बच्चे बैठे क्लास के, आपकी क्लास में कौन बैठी है? ऊपर 23। पर्चा 45 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। तालिबा का कहना था कि हमें इस जगह का ही बताया गया था, अब हम कहाँ जाएं? दूसरी जानिब इम्तिहान में नकल माफिया को काबू करना बोर्ड इंतज़ामिया के लिए इम्तिहान बन गया। नकल माफिया बेलगाम और बोर्ड इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। मुसलसल चौथे रोज़ सवालनामा कबल अज़ वक्त लीक हो गया। 10वीं का अंग्रेज़ी का पर्चा कमरा इम्तिहान से कबल व्हाट्सएप ग्रुप तक जा पहुंचा। नकल माफिया ने पर्चा हल करके भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल कर दिया। इधर मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान कई इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। तलबा व तलबात ने शदीद गर्मी में इम्तिहान दिए। आयमा खान, सिटी 21। यहाँ आपको बताएंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम तायनाती, मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की जा सकी। मजदूरों का एहतजाज, तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। टाउन इंतजामिया की नाअहली या गफलत, म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती में ताखीर, मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन रवा बरस की 28 मार्च से म्यूनसिपल कमिश्नर से महरूम है, जिसके बायस तमाम अदायगियाँ बंद हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा न की जा सकी, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मामला तो हमारी तो रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर बल्दियात से कि ये जो SCU के अफसरान जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम और बिज़नेस हमारा पूरा रुक जाता है, तो हम तो इनसे गुजारिश करेंगे कौंसल के अफसरान को भी TMC बनाया जाए, जिसकी वजह से या अगर जब तक TMC नहीं है उस वक्त तक कौंसल के अफसरान को इजाफी चार्ज दिया जाए। सबसे पहला मसला जो आपके सामने ये हमारे साथी खड़े हुए, तकरीबन 1 महीना 15 दिन हो गए तनख्वाह नहीं हुई। दूसरे जो दफ्तरी मामलात हैं वो सारे स्टक हो गए, बिल्कुल रुक गए।
यानी कि हम जवाली की तरफ आ गए हैं, जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था। आज हम वहीं जीरो पे खड़े हैं। सीनियर नायब सदर लेबर विंग फंक्शनल लीग सैयद नजम रिजवी बोले, तनख्वाहों की ताखीर से मेहनत कशों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फौरी म्यूनिसिपल कमिश्नर की तकर्री अमल में लाई जाए या फिर DDO पावर किसी दूसरे अफसर को तफवीज किए जाए। लोगों के यूटिलिटी बिल जो है वो उसके ऊपर जो है प्लेंटीज लग चुकी हैं, उनका क्या होगा। स्कूलों की बच्चों की फीसें उनको स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये हाल है। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि भाई जितनी जल्दी है फौरी तौर पे जो है इस पे एक्शन लिया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी भी नॉलेज में है कि हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर की तैनाती जो है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है, और जिसकी वजह से जो काउंसिल के फंक्शंस है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सस्पेंडेड हैं और हम कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये एक और सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें, और मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं आप देखेंगे लोग ऑफिस के बाहर भी जमा हैं, और ख़ास से ज़्यादा जो है ना लोग इस चीज़ के ऊपर जो है नाराज़ हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदायगियाँ ना होने से इंतज़ामी बहरान संगीन हो गया है और अवामी खिदमात को भी ब्रेक लग गया है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। सस्ती रोटी का ऐलान, शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। नान भाइयों ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तंदूर की फी रोटी सरकारी कीमत 17 रुपये मुकर्रर है। बाजार में 30 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी है। तफसीलात के लिए देखिए कराची से वसीम अख्तर की रिपोर्ट। आटा सस्ता, इंतजामिया का रोटी कम कीमत बेचने पर इसरार, तंदूर वालों का मानने से इनकार, अवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। रोटी की सरकारी कीमत मुकर्रर लेकिन अमल दरामद कहीं नहीं। कमिश्नर कराची ने तंदूर की रोटी की सरकारी कीमत 17 रुपए और चपाती की सरकारी कीमत 12 रुपए मुकर्रर की। शहर में ताहाल तंदूर की रोटी 20 रुपए से 30 रुपए तक और चपाती 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। मनमानी कीमत पे रोटी मिलती है। 15 रुपए या 12 रुपए जितनी भी रोटी मिलनी चाहिए इतनी मिलनी चाहिए जो गरीब आदमी हर बंदा बैठे खा भी ले। 30 की कहीं मिल जाती है, कहीं 35 की भी मिल जाती है। हर किसी ने अपना अपना रेट बनाया हुआ है, क्या करें, हमने तो खानी है। होटल मालकान सरकारी कीमत पर रोटी फरोख्त करने पर तैयार नहीं। कहते हैं अखराजात को मद्देनजर रखते हुए रोटी की कीमत मुकर्रर करते हैं। अभी तो देखेंगे, हम डिफेंस में बैठे हुए हैं, दुकानों के रेट क्या नाम रेंट वगैरह भी हो गया और भी यानी कि मेंटेनेंस हो गए, गैस वगैरह भी सही है, मजदूरों को भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर आटा हमें फिर भी और भी सस्ता हुआ तो मजीद हम कम करेंगे। शहरियों का मुतालबा है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर सस्ती रोटी का हसूल आसान बनाया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। औरंगी टाउन में बच्चे को अगवा करके कत्ल करने वाला घर का दामाद निकला। मुलजिम ने रकम ना मिलने पर 12 साला बच्चे को कत्ल करके लाश फेंक दी थी। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। सलमान सलीम की रिपोर्ट। साले को अगवा करके 7 से 15 लाख रुपए तवान तलब करने वाला दामाद पकड़ा गया। रकम न मिलने पर 12 साला उबैद को कत्ल करके लाश नूर मोहम्मद ग्राउंड में फेंक दी गई थी। अहले मोहल्ला ने बताया कि 12 साला उबैद 2 रोज कबल गली में खेलते हुए अचानक गायब हो गया था। कुछ ही देर बाद 15 लाख रुपए तवान की कॉल मौसूल हुई। बहुत ज्यादा गम ज़दा वाक़या है ये। घर वाले क्या बोलते, अहले मोहल्ला जो है ना इस टाइम बड़े गम में मुब्तला है, क्योंकि एक मासूम जान जो है ना बहुत अहमियत की हामिल है। 15 लाख की जो ना उन्होंने डिमांड रखी थी, फिर आज 2 दिन के बाद जो ना नहीं पैसे नहीं दिए। सुनने में आया है कि इनकी वालदा जो ना लेके गई थी पेमेंट, तो मगर जो ना फिर बच्चे को शहीद कर दिया गया। उबैद के वालिद ने बताया कि उबैद बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 2 रोज कबल लापता हुआ और आज लाश मिली। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चे को हमारे शाम 6 बजे से घर से लापता हुआ, उसके बाद से वो नहीं मिला मुझे। रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं उसको ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। 11:50 में फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। आज मुझे 10 तारीख को पता चला, SHO साहब ने बताया कि इसमें ये मुलविस हैं ये लोग, आपके इसमें दामाद शामिल है, 4-5 लड़के शामिल हैं, और आपके बच्चे मंगोपीर थाने को दूध खैराबाद से मिला लाश। SP AVCC के मुताबिक 8 मई को मोमिनाबाद से बच्चे को अगवा किया। बच्चे की वालदा 1 माह कबल बैरून मुल्क से वतन पहुंची थी। मुल्जिमान के पास घर की तमाम तफसीलात थी। वालदा 15 से 20 लाख रुपए लेकर कराची पहुंची थी। मुल्जिम ने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार किया और निशानदगी पर लाश बरामद की। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। गवर्नर कामरान खान जैसोरी ने रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। कहते हैं शहर में ठेला लगाने वाले गवर्नर हाउस आएं,
इन्हें पहले मरहले में किराए की दुकानें देंगे। मुस्तकीन में प्लॉट और छीनी गई मोटरसाइकिलें भी असल मालकान के हवाले की। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में छीनी गई मोटरसाइकिलें इनके मालकान के हवाले कर दी गईं। मुस्तहकिन को प्लाट के कागजात भी मिले और बीमारों को इलाज के लिए चेक भी दिए गए। कामरान टिसोरी बोले, लोगों को इनकी मनपसंद का रोजगार फराहम करेंगे। हफ्ते के रोज 25,000 राशन गवर्नर हाउस पहुंच रहा है। इंशाल्लाह ताला आज ये मैं एक नई अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके सामने, और वो ये है कि जिस तरह रोजगार स्कीम के लिए हमने कहा है कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का प्रपोजल बनाएं और हमारे पास जमा कराएं। इंशाल्लाह ताला उसका डोनर तैयार है। अगले हफ्ते हम मीडिया के सामने उन सबको पेमेंट करेंगे जो प्रपोजल लेकर आए होंगे। आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। गवर्नर सिंध का कहना था, कराची में जिन लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, इन्हें बाइक्स देंगे। मुस्तहिक तलबा व तालिबात के तालीमी अखराजात भी उठाएंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम 1800 से जायद लोगों को मोटर बाइक्स दे चुके हैं और अब हम अगले महीनों का भी ऐलान करने जा रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि कराची में एक बच्चे की जो बाइक चोरी हुई थी, इंशाल्लाह ताला हम गवर्नर हाउस से देंगे, इंशाल्लाह ताला। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने प्लॉट के कागजात और छीनी गई मोटरसाइकिलें इनके मालकान के हवाले की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। महकमा खुसूसी तरक्की इंसानी आबादकारी समेत दीगर महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले। शारिक अहमद सेक्रेटरी इंसानी आबादकारी खुसूसी तरक्की सोशल हाउसिंग तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आज़ाद नहोड़ियों से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा 20 ग्रेड के अफसर जो तकरीर के मुतज़र थे, शारिक अहमद, उनको सेक्रेटरी इंसानी आबादकारी खुसूसी तरक्की और सोशल हाउसिंग तैनात कर दिया गया है। जबकि इससे कबल शारिक अहमद जो सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत अफरादी क़ुव्वत के अहदे पर तैनात थे निगरान हुकूमत में, जिसके बाद उनको अहदे से हटा दिया गया और तकरीर के मुंतज़र थे। जबकि शारिक अहमद इससे कबल सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, जनरल सूबा राब्ता, अमल दरामद और दीगर अहम अहदों पर भी विराजमान रहे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर टंडोरायर अब्दुल हलीम लगारी का तबादला करके उनको चीफ मॉनिटरिंग अफसर एवोल्यूशन अफसर स्कूल तालीम बदीन तैनात कर दिया गया है। जब रीजनल डायरेक्टर बल्दियात कराची अली अनवर रुख का जो है कराची से तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात सखर तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात सखर रीजन खलीलुल्लाह मेमन को उहदे से फारिग करके उनको महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जबकि एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात जैकबाद ओन कमर जोक्सो का तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात लाड़काना तैनात कर दिया गया है। वहाँ से जो है औरंगजेब समूह को उहदे से फारिग करके महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से अलग अलग से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 73,449 की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट की लंबी छलांग, एक बार फिर तेजी का नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 73,000 की नई बुलंद तरीन सतह कायम की। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 427 पॉइंट्स के इजाफे से 73,085 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में आज सीमेंट, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन सेक्टर्स में सरमायाकारों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। कारोबार के दौरान 381 कंपनियों के 75 करोड़ 11 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। अयाज राना, सिटी 21। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद, सरमायाकारी कैसे करें? ताजरों ने सवाल उठा दिया। आइंदा 9 माह एक्सपोर्टर्स को 19 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली की शदीद नफी असरात का खदशा। काटी एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं कि कोई भी सरमायाकार 22% बुलंद शरह सूद और इतनी महंगी बिजली पर सरमायाकारी नहीं करेगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद, ताजुरों के बढ़ने लगी परेशानी, सरमायाकारी को भी लग गए ब्रेक। एक्सपोर्टर ने हर माह तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं महंगी बिजली से पहले ही परेशान थे। इस पर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगले 9 माह तक ये बोझ मुश्किलात पैदा कर देगा। हाई पावर रेट, एनर्जी रेट्स के ऊपर, जहाँ पे आपकी गैस ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, उधर आप और फिर हमारे ऊपर जो है वो
फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगाएं पिछले साल का, जिसकी बुक्स हम क्लोज कर चुके हैं, जो माल बन के बिक चुका है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 रुपये जो है वो हम पिछले साल का इस साल पे करें? ये कहीं पे भी नहीं होता, ये कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है। आप जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, आप कैसे जो है वो ये इसको जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि आप जो पिछले साल आपने काम किया था उसका 18 रुपये आप आज पे कर दें? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि सऊदी अरब से सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए फोकस किया गया है। ये भी समझाया जाए कि इतनी महंगी बिजली और साथ ही 30% कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई बाआसानी सरमाकारी नहीं करेगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी मुल्क, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंगल डिजिट में है, जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स कोई भी नहीं है, वो अपना पैसा सऊदी अरब से निकाल के पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा, जबकि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर? तो हमें ये देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या इस इकॉनमी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो ये जो हम पहले से गलतियां करते आ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू ना करें। एक्सपोर्टर ने तजवीज़ दी है कि मुकामी और गैर मुल्की सरमाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत को शरह सूद में हर सूरत कमी करना होगी। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। रिटेलर्स ने सरकारी कीमत पर अमल दरामद से साफ इनकार कर दिया। ताजिर फरीद कुरैशी कहते हैं कि कमिश्नर कराची ने रिटेलर से मुशावरत के बगैर कीमत जारी कर दी, जबकि शहरियों की शिकायत है कि किसी दुकान पर सरकारी नर्ख आवेजा नहीं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी नर्खनामा नामंजूर, ताजिरों का रद्द अमल आ गया। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं कि आटा 120 रुपए से कम पर नहीं बेच सकते हैं। रिटेलर्स को दबाने का सिलसिला बंद किया जाए। यही एक्चुअली 90 रुपए के हिसाब से खरीदता तो 102 रुपए का उसको आटा दुकान पर आकर पड़ेगा। फिर उसका मार्जिन है, मुलाजिम है, बिजली है, गैस है, तो ये सब अखराजात जो है लाजमी बात है कि 120 रुपए से कम आटे की कीमत। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी दुकान पर सरकारी नर्ख आवेजा नहीं है। लिस्ट कैसे पता लगेगी जब तक आम आवाम तक वो लिस्ट पहुंचेगी नहीं? तो जब आवाम तक लिस्ट नहीं पहुंचेगी तो माल वो किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं तो उनको ये पता ही नहीं हो सकता कि कमिश्नर का रेट क्या है और उनका मौजूदा रेट क्या है। आवाम को रिलीफ कौन देगा? गवर्नमेंट का काम है, इदारों का काम है ना, वो तो काम कर नहीं रहे, बस खाली कागज़ों में होता है काम, बाकी प्रैक्टिकल तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हर कोई अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहा है। कमिश्नर कराची जिम्मेदार है, वो आएंगे देखेंगे, जब सर्वे करेंगे उन्हें पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। जब तक वो आएंगे नहीं देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? किसी भी दुकान में रेट लिस्ट ऐसी पेस्टिंग में भी नज़र तो नहीं आ रही कहीं भी। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमत पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन शकील और साथी रिपोर्टर ताहा मलिक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गाड़ियों की कीमतें कम लेकिन अवाम समरात से महरूम। बड़े डीलर्स ने अपने सरमाकारों की इन्वेस्टमेंट करवाकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। कम कीमतों के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। अवाम के लिए कम कीमत में गाड़ी खरीदना ख्वाब बन गया। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। किया और सुजुकी की गाड़ियों की कीमतों में कमी भी ड्रामा करार। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना है किया मोटर्स ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। किया का स्टॉनिक मॉडल आवाम को महंगे दामों पर फरोख्त हो रही है। कंपनी ने 15 लाख रुपए कम तो किए मगर तमाम गाड़ियां सरमायाकारों और मुनाफाखोरों के पास चली गईं। जिस दिन ये बुकिंग इन्होंने खोली उस दिन रात शाम 5 बजे बुकिंग बंद कर दी और जितनी भी गाड़ियाँ इनके पास जो स्टॉक में खड़ी थी वो तमाम गाड़ियाँ बिक गईं और हमें ये लगा कि वाकई ये आम पब्लिक और जो मेन कस्टमर्स है जो पब्लिक से है उनको ये गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि तमाम गाड़ियाँ इनके जो ऑथराइज डीलर हैं उनके इन्वेस्टरों ने ये गाड़ियाँ खरीदी। आज ये गाड़ियाँ बाज़ार में 7-7 लाख रुपए ऑन पे बिक रही हैं। कार शोरूम्स डीलर्स का कहना है कि ये आवाम के साथ अजीब फ्रॉड हुआ है। कम कीमतों के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा रिसेल जिनकी है जैसे टोयोटा है और होंडा है, उनकी रिसेल में मतलब उनकी जो प्राइस है वो बिल्कुल ही नीचे आने को तैयार नहीं। अब जो ना बिकने वाली गाड़ियाँ हैं वो तो नीचे आ रही हैं। चीज़ें जो इनकी सेल नहीं हो रही थी जिसमें स्टॉनिक है या स्विफ्ट है, उसको चलाने के लिए, कामयाब करने के लिए आवाम के साथ, पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है ना, ऐसा अजीम धोखा कि कोई शायद समझ नहीं पाए। शोरूम डीलर्स ने होंडा और टोयोटा कंपनी से अपील की है कि वो भी तमाम मॉडल्स की कीमतों में कमी करें ताकि आवाम को असल में सस्ती गाड़ियां मिल सकें। कैमरामैन सज्जाद के साथ अयाज राना, सिटी 21। लेजेंड गुलकार और मौसीकार सुहेल राना को खराज अकीदत।
कराची सिटी स्कूल गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम कैंपस स्कूल के बच्चों ने ट्रिब्यूट पेश किया। जहां मेहमानी खुसूसी अजरा मोइनुद्दीन कैंपस की प्रिंसिपल इरम उमर ने इस्तकबाल किया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने लेजेंड सुहेल राना के गानों और तरानों पर परफॉर्मेंस पेश किया। ये पार्ट था हमारी स्टडीज़ का जो हमारे बच्चों ने अपने करिकुलम को पढ़ते हुए किया था, और हमारा करिकुलम चूँकि हमें अलाउ करता है कि हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, तो उसके लिए फिर सुहेल राना साहब से कोई बेहतर पर्सनालिटी हमारे पास नहीं थी जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया। और अगर हम देखें तो बच्चों के लिए अब उस तरह का काम नहीं हो रहा जो सुहेल राना साहब ने किया। और बेहद अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने किया। सुहेल राना साहब के लिए ट्रिब्यूट रखा, और उनके क्योंकि कौमी नगमे भी हैं और बच्चों के तो बेशुमार गाने हैं। मैं अभी इनकी प्रिंसिपल से यही कह रही थी कि उनको रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि और मज़े मज़े की उसमें चीज़ें हैं, जैसे डाक बाबू मेरा ख़त ले जा, या दोस्ती ऐसा नाता, जीवे पाकिस्तान, और कौमी नगमे तो उनके हैं ही मशहूर। तो वो बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि मतलब बच्चा अगर पढ़ भी रहा है, बैकग्राउंड में उनके वो बच्चों वाले जो गाने हैं वो ज़रूर चलने चाहिए, उनको याद होने चाहिए।